Hello everyone. Now in our soil mechanics, today we are going to see our next topic, method of improving stability of the slope. Now before we going to see our next topic, in a previous video we saw that stability analysis of finite slope. So first of all, what is finite slope? If the slope is limited extent, it is called finite slope. A finite slope is bounded by base and a top surface. Then after we saw the basic type of failure of finite slope may occur. First is a slope failure. So in a slope failure, face failure and toe failure. And third is a base failure. Now then after we saw how we stabilize stability analysis of finite slope involves the following step अकॉर्डिंग टू द कॉमनली अडोप्टेड प्रोसीजर. ठीक है, कौन कौन सा स्टेप हम कंसिडर करेंगे टू स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ द फाइनाइट स्लोप. द फर्स्ट इज एज्यूमिंग अ पॉसिबल स्लिप सरफेस. हमें क्या एज्यूम करना है? द पॉसिबल स्लिप सरफेस. देन स्टडीइंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस. क्या स्टडी करना है? नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस सरफेस. जो स्लिप सरफेस होगा वो सरफेस पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. रिपीटिंग द प्रोसीजर अंटिल द वर्स्ट स्लिप सरफेस. ये प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे. दैट इज़ द वन विथ मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी. जो स्लिप सरफेस होगा उसको हम नंबर ऑफ स्लाइसिस में डिवाइड करेंगे. एट द टाइम उसको हम एट दैट स्लाइस पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करेंगे और जो मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा उसको हम कंसिडर करेंगे. इट इज़ द लोअर स्टेबिलिटी ऑफ द स्लोप. ठीक है. देन फॉर द स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ फाइनाइट स्लोप द फॉलोइंग मेथड आर कॉमनली अडोप्टेड. द स्वेडिश सर्कल मेथड और स्लिप सर्कल मेथड, देन फ्रिक्शनल सर्कल मेथड एंड बिशॉप्स मेथड एंड टेलर्स मेथड. नाउ वी सो दैट स्वेडिश सर्कल. तो स्वेडिश सर्कल किसके लिए है? इट इज़ फॉलोइंग टू केसेस. फर्स्ट इज एनालिसिस ऑफ प्योरली कोहेसिव सॉइल. सो फाई इज इक्वल टू 0 soil, and analysis of cohesive frictional soil, C5 soil. Now next is method of improving stability of the slope. So the slope which are susceptible to failure by sliding can be improved and made stable and safe. The following method are generally adopted to improve the stability of slope. ठीक है. The first is flattering the slope reduces the tendency of soil mass to the slide. Second is proper drainage help to reducing the seepage force and hence increase the stability. Third is dense infection by use of explosive, vibroflotation etc. help to increasing the shear strength of the cohesionless soil and thus increasing the stability. Providing a bump below the toe of the slope increase the resistance to sliding of the soil. It is especially useful when there is no possibility of the base failure. Then grouting and injection of cement and other compound in the Pacific zone help in increasing the stability of the slope. Then soil stabilization help in increasing the stability of the slope. Fixing geogrids and geomembrane on the slope. Consolidation by surcharging electroosmosis help in increasing the stability of the slope of the cohesive soil. And providing lateral support by installing sheet piles and retaining wall. Now what is the method of improving stability of slope? जो slope failure होगा वो हम कैसे improve करेंगे? So there are some method, procedure are there. The slope which are susceptible to failure by sliding की वजह से जो slope failure होगा वो उसको हम कैसे modified करेंगे या improve करेंगे? So the following method are generally adopted. Here some method are used to improve the stability of the slope. The first is flattering the slope reduce the tendency of soil mass to slide. नॉर्मली कोई भी स्लोप फेलियर होगा वो किससे होगा? सॉइल मास के स्लाइड से. ठीक है. जैसे कि वेदरिंग होगा, फ्रिक्शन होगा, उसकी वजह से सॉइल मास को स्लाइड होगा. ठीक है. एट दैट टाइम स्लोप फेलियर होगा. तो हम क्या करेंगे? जो स्लोप है उसको फ्लैटरिंग करेंगे. एट दैट टाइम हम जो स्लोप फेलियर होगा उसको हम रोक सकेंगे.
देन प्रॉपर ड्रेनेज इन रिड्यूसिंग द सीपेज फोर्सेस एंड हेंस इंक्रीज द स्टेबिलिटी। ठीक है, जो ड्रेनेज होगा वो हम प्रॉपरली अप्लाई करेंगे एट दैम टाइम। जो सीपेज होगा, नॉर्मली सीपेज कहाँ होगा, कोहेसिव सॉइल में। कोहेसिव सॉइल के अंदर क्या होगा, वॉइड्स होगा। वॉइड्स क्या करेगा, पानी को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, एट दैट टाइम जो सीपेज की वजह से स्लोप फेलियर होगा उसको हम रिड्यूस करेंगे बाय यूजिंग अप्लाइंग प्रॉपर ड्रेनेज। प्रॉपर ड्रेनेज अप्लाई करेंगे, एट दैट टाइम हम स्लोप की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे। देन डेंसिफिकेशन बाय यूज़ ऑफ एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव हम यूज़ कर सकते हैं, विब्रो फ्लोटेशन यूज़ कर सकते हैं। ये इसके हिसाब से क्या होगा, इंक्रीजिंग द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द कोहेशन लेस। ये एक्सप्लोजिव और वाइब्रोफिकेशन अब यूज़ करेंगे, एट दैट टाइम क्या होगा, जो सॉइल की शियर स्ट्रेंथ है। शियर स्ट्रेंथ क्या है, जो सॉइल पे लोड आएगा, लोड की वजह से जो फेलियर होगा, ठीक है, जब तक उसकी बेरिंग कैपेसिटी होगी वहाँ तक वो लोड कैरी करेगा। एट दैट टाइम जो उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, एट दैट टाइम क्या होगा, सॉइल का कोलैप्स होगा। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, यूज़ ऑफ एक्सप्लोजिव एंड वाइब्रो फ्लोटेशन। ये क्या हेल्पफुल रहेगा, एंड स्टेबिलिटी स्लोप की बढ़ाएगा। ठीक है, कोहेशन लेस सॉइल एंड दस इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी। देन प्रोवाइडिंग अ बम बिलो द टो एंड अ स्लोप इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू स्लाइडिंग ऑफ द सॉइल। ठीक है, जो टो होगा यानी कि बॉटम पोर्शन ऑफ दी सॉइल का जो बॉटम पोर्शन है उस पर हम बम प्रोवाइड करेंगे। एट दैट टाइम जो स्लाइडिंग होगा सॉइल को, उसको हम रोक सकेंगे। सो इट इज़ स्पेशली यूजफुल व्हेन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ बेस फेलियर। बेस फेलियर में ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी। नाउ ग्राइटिंग एंड इंजेक्शन ऑफ सीमेंट एंड अदर कंपाउंड इनटू पैसिफिक जोन हेल्प इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। दिस एडवांस मेथड आर नॉर्मली यूज इन रिसेंट सिनेरियो इन आवर कंट्री। ठीक है, हमारे देश में ये प्रोसीजर अभी यूज़ हो रहा है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप में, बिकॉज इट इज़ वेरी मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। क्या करेंगे, ग्राउटिंग और इंजेक्शन, सीमेंट का इंजेक्शन प्रोवाइड करेंगे एंड ग्राउटिंग करेंगे। कहाँ पे, तो पैसिफिक जोन सॉइल मास के अंदर जो स्लिपिंग के चांसेस ज़्यादा होगा, इस पर्टिकुलर पैसिफिक जोन में हम इंजेक्शन ऑफ सीमेंट और ग्राउटिंग यूज़ करेंगे। एट दैट टाइम हम सॉइल का स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। सॉइल स्टेबिलाइजर हम इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। ऑब्वियसली जो स्टेबल सॉइल होगी तो वो क्या हेल्प करेंगी, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप में इंक्रीमेंट करेंगी। फिक्सिंग जियोग्रिड्स एंड जियो मेम्ब्रेन ऑन दी स्लोप। देन कंसोलिडेशन बाय सरचार्जिंग इलेक्ट्रोऑस्मोसिस हेल्प इन इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप ऑफ कोहेसिव सॉइल। अब सरचार्जिंग होगा, सरचार्ज की वजह से सॉइल के अंदर क्या होगा, फुल्ली सेचुरेट सॉइल होगी। एट दैट टाइम हम एक्स्ट्रा सॉइल उस पर डालेंगे, एट दैट टाइम क्या होगा, कंसोलिडेशन होगा। सो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस वो हम यूज़ करेंगे, वो क्या करेंगे, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप ऑफ कोहेसिव सॉइल। देन प्रोवाइडिंग लेटरल सपोर्ट बाय इंस्टॉलिंग सीट पाइल एंड रिटेनिंग वॉल। ठीक है, जहाँ पे स्लोप होगा एट दैट टाइम हम क्या प्रोवाइड करेंगे, सीट पाइल और रिटेनिंग वॉल। नॉर्मली जनरली क्या यूज़ करेंगे, रिटेनिंग वॉल। सो इट इज़ यूजफुल टू स्टेबिलिटी ऑफ द सॉइल स्लोप. Now some here example is that first is example 1, a long natural slope of cohesionless soil is inclined at 12 degree to the horizontal. Taking phi is equal to 30 degree, determine the factor of safety of this slope. If the slope is completely submerged, what will be the change in the factor of safety? ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया है कि नेचुरल स्लोप है कोहेशन लेस सॉइल के अंडर, क्या है, इंक्लाइन 12 डिग्री इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल। टेकिंग फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाई हम कैसे कंसिडर करेंगे, इट इज़ 30 डिग्री। क्या डिटरमाइन करना है हमें, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ दिस स्लोप। स्लोप का हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड करना है। इफ़ द स्लोप इज़ कम्प्लीटली सबमर्ज, व्हाट विल बी द चेंज इन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जो स्लोप कम्प्लीटली सबमर्ज हो जाएगा एट दैट टाइम फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा। तो हमें दो वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ नेचुरल स्लोप है कोहेशन सॉइल के साथ, कितना एंगल है, 20 डिग्री इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल। फाई हमें कितना है, 30 डिग्री दिया गया है। देन आफ्टर हमें क्या फाइंड करना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द स्लोप।
If the slope is completely submerged, what will be the change in the factor of safety? So here phi is equal to 30 degree, I is equal to 12 degree. Now we know that for a dry soil, factor of safety F is equal to tau F upon tau. So tau F is equal to 10 phi and tau is equal to 10 I. So it is 1030 divided by 1012. So 1030 is equal to 0.577 divided by 0.212. So simplified it. So factor of safety F is equal to 2.72. Then for a submerged soil, when the slope is submerged, gamma is replaced by gamma dash. So F is equal to tau F upon tau. So we have formula for that, sigma 10 phi upon gamma dash H cos I sin I. So sigma is equal to gamma dash H cos square I 10 phi upon gamma dash H cos I sin I. So simplified करेंगे, so we get also 10 phi upon 10 I. So 1030 degree upon 1012 degree. So it is 2.72. Same value आएगी. So thus the factor of safety of submerged slope is the same as the dry state. Now next example is a long natural slope of a sandy soil having angle क्या है 25 degree is inclined to at 10 degree to the horizontal. The water table is at the surface and the seepage is parallel to the slope. If the saturated unit weight of the soil 19.5 kilonewton meter cube, determine the factor of safety of the slope. So here phi is equal to 25 degree, I is equal to 10 degree. Soil is sandy soil. Gamma saturated is equal to 19.5 kilonewton meter cube. So first of all हम क्या फाइंड करेंगे, gamma dash. So it is derived from gamma saturated minus gamma W. So here we have value for gamma saturated, it is 19.5 minus gamma W is equal to 10. So gamma dash is equal to 9.5 kilonewton per meter cube. गामा डैश की हमें वैल्यू मिल जाएगी 9.5 kilonewton per meter cube. नाउ हमें क्या फाइंड करना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी F इज इक्वल टू गामा डैश अपन गामा सैचुरेटेड इंटू 10 phi अपन 10 I. तो वी हैव gamma dash is equal to 9.5, gamma saturated 19.5 multiply by 10 phi is equal to 1025, 10 I is equal to 10 degree. So it is 9.5 by 19.5 multiply by 0.466 upon 0.176. So it is 1.29. So in this way we can find factor of safety for the stability of the slope. Now next example is a long natural slope in a C5 soil is inclined to 12 degree to the horizontal. The water table is at the surface and the seepage is parallel to the slope. If a slip plane had developed at a depth of 4 meter below the surface, determine the factor of safety. Take C is equal to 10 kilopascal, phi is equal to 20 degree and gamma saturated is 20 kilonewton per meter cube. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा क्या है, phi इज इक्वल टू 20 डिग्री, I इज इक्वल टू 12 डिग्री, C इज इक्वल टू 10 किलो पास्कल, गामा सैचुरेटेड इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. सो गामा डैश इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W. सो गामा सैचुरेटेड हियर 20 माइनस गामा W 10. सो इट इज़ 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. हाइट क्या है 4 मीटर. So F is equal to C plus gamma dash H cos square I 10 phi upon gamma saturated H into cos I sin I. We have all value for that. C is equal to 10 plus gamma dash is equal to 10 multiplied by 4 into cos square 12 degree 10 12 degree divided by 20 cross 4 cos 12 sin 12. So it is 1.47. फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 1.47. सो फॉर्मूला याद रखो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वी कैन फाइंड. नाउ लास्ट एग्जांपल इज
A vertical cut is made in a clay deposit having C is equal to 30 kilonewton meter square, phi is equal to 0, gamma is equal to 16 kilonewton meter cube. Determine the maximum depth of the cut so that the cut is stable. Take Sn is equal to 0.261. So here given data is C is equal to 30 kilonewton meter square, gamma is equal to 16 kilonewton meter cube, Sn is equal to 0.261. For the maximum depth of the vertical cut, Fc is equal to 1. So we know that Sn is equal to C upon Fc into gamma into H. So Sn is equal to 0.261 is equal to C is equal to 30 divided by 1 cross 16 multiplied by Sc. So Sc is equal to 7.18 meter. So in this way we can find factor of safety for a stability of slope by using different formula. तो formula याद रखो,